Hello students, today we are going to start the nitrogen containing functional groups lecture number 3. In this I am going to tell you about the remaining chemical properties of nitro compounds. As in the last class I have already explained you about the reduction and hydrolysis of nitro compounds. So the first reaction of today's class is halogenation reaction. As in case of halogenation, whenever a nitro compound is halogenated, it is halogenated in presence of sodium hydroxide or KOH. It gives what? It replaces the alpha hydrogen atom with the halogen, so that it gives what? CH2, Cl and NO2. And this reaction continues till the compound contains alpha hydrogen atom. जितने भी alpha hydrogen atom होंगे वो सारे के सारे replace हो जाएंगे halogen से इसमें. So it goes on continuing in presence of NaOH, chlorination in presence of NaOH, so that it gives CCl2, NO2. Again on treatment with chlorine in presence of NaOH gives CCl3, NO2. Means this reaction is given only by those nitro compounds which contains alpha hydrogen atom. Otherwise this reaction will not be shown by that particular nitro compound which lacks alpha hydrogen atom. For example, tertiary nitroalkanes do not contain alpha hydrogen atom, so they will not show this reaction. And the product which is obtained here, this is what? It is chloropicrin. We have already studied about this compound in halogen derivatives chapter in trihalogen derivative. This is CCl3, NO2. It is an insecticide, chloropicrin. Now the next reaction is nitration, that is reaction with nitrous acid. Not titration, reaction with nitrous acid. Nitrous acid is what? NO2. And this reaction is also used as a distinguishing test for primary, secondary and tertiary. It is same like the Victor-Meyer test. It is a series of reaction. In this it forms first it is treated with nitrous acid, then with NaOH, and it forms a salt, and that salt have a particular color which can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary nitroalkanes. As primary nitroalkane, when it is treated with HNO2 in the first step, and in the second step with NaOH, it gives a salt which is red in color. And the secondary nitroalkane, it gives when the same thing is treated, it gives blue colored solution. And the tertiary, it do not reacts with this, so there is no reaction, means the reaction no reaction takes place, so no color is observed. So this reaction, that is reaction with nitrous acid, can be used as a distinguishing test for primary, secondary and tertiary nitroalkane. Next, the reaction is same as aldol condensation, that is the condensation of nitroalkane with aldehydes and ketones. एज आपको याद होगा एल्डोल कंडेंसेशन हमने कैसे किया था. एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या करते थे? CH3CH डबल बॉन्ड O. फिर इसका रिएक्शन हम CH3CH डबल बॉन्ड O से कराते थे. दिस हाइड्रोजन शिफ्ट्स टू दिस प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स व्हाट? CH3CH, हियर OH एंड दिस CH2CHO. ऐसा फॉर्म होता था. और फिर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते थे, सो दैट इट गिव CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO. ऐसा कंपाउंड फॉर्म होता था. सेम ऐसे ही एल्डोल कंडेंसेशन है इसमें. तो एल्डोल कंडेंसेशन के टाइप का ही है. तो ये देखो रिएक्शन कैसे रहती है इसमें. इन दिस एन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अ नाइट्रो कंपाउंड. नाइट्रो कंपाउंड अब यहाँ पर कैसा रहेगा देखो. CH3 NO2 है. This is treated with an aldehyde CH3CH double bond O. Now this hydrogen shifts to this place. As the hydrogen shifts here, that carbon becomes negatively charged and it will act this nitro compound acts as a nucleophile. Now as it shifts this, so that carbon gets a negative charge and it acts as a what? It acts as a nucleophile. And whereas this aldehyde acts as what? It acts as an electrophile. ठीक है. ये यहाँ शिफ्ट होगा तो अभी देखो कैसे दिखने लगा. CH3CH, ये यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर CH2 NO2 ग्रुप रहेगा. और फिर इसका कंडेंसेशन करना है. मीन्स वी विल रिमूव वाटर फ्रॉम इट. एज वी रिमूव्स वाटर फ्रॉम इट, देयर विल बी एन अनसैचुरेशन.
समझ में आ गया? सेम ऐसे ही किया जैसे हम एल्डोल करते थे वैसे ही किया है रिएक्शन, बट द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, इन दिस वी आर टेकिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ एन aldehyde and other molecule is of a nitro compound, where it is, and this reaction is also given by only those nitroalkanes which contains alpha hydrogen atom. Means only primary and secondary will give, tertiary will not give this type of reaction. ठीक है, समझ में आ गया? और इसमें इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वो क्या है, मैंने अभी बताया, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मीन्स इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होने वाला है इसमें, कार्ब एनायन एज एन इंटरमीडिएट ऑब्टेन करने वाले हैं. सो दिस मच इज इनफ फॉर दी एलिफेटिक नाइट्रोअल्केन्स. अब हम एरोमेटिक नाइट्रोअल्केन्स की कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे. Now the aromatic nitro compounds, as this benzene ring contains NO2 group, and this NO2 group is what type of group? It is an electron withdrawing group. As it withdraws electrons, so it withdraws electron from the ortho and the para positions. Means there will be substitution, only at meta substitution will take place in case of nitro arenes. ठीक है, तो ये कैसे, ये क्या है, मेटा डायरेक्टर है. समझ में आ गया? ये क्या है फिर, मेटा डायरेक्टर है. अब इसकी हम कौन कौन सी रिएक्शंस करेंगे, जैसे हम सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स की पढ़ते थे वही, जैसे दिस इट कैन गिव 3 बेसिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन. वन इज हैलोजिनेशन, as in halogenation it will give meta bromo nitro benzene, and on nitration using HNO3 and H2SO4 it gives what, it will give meta dinitro 1,3 dinitrobenzene, and on sulfonation, अब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत बार, इसलिए अब मैं फिर से वो नहीं बता रही हूँ. NO2 ग्रुप यहाँ रहेगा और यहाँ पर SO3H ग्रुप आ जाएगा. सो दिस टाइप, दैट इज मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड विल बी ऑब्टेन्ड. न्यूक्लियोफिलिक, these all are what, electrophilic substitution reaction, but this compound can also give nucleophilic substitution reaction because NO2 is an electron withdrawing group. अगर आपको याद होगा तो हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में आपको बताया था, इफ़ यू वांट टू रिप्लेस द क्लोरीन विच इज अटैच्ड टू एन हेलोरीन, it will be easier if you are going to attach NO2 group to that benzene because it's an electron withdrawing. Wherever an electron withdrawing group is attached, it withdraws the electrons from that ring. As a result of this, the bond between the carbon and the halogen weakens and the breaking becomes easier, whereas the aromatic compounds are more prone to give electrophilic substitution reactions rather than nucleophilic substitution reactions. So let's see, that is if the reaction is carried out with benzene ring with one NO2 group and one chlorine group like this, and the other reaction with one chlorine and 2 NO2 group, and the other reaction with one chlorine and 3 NO2 group. Like this. So this reaction will be at a very faster rate, means this in this the nucleophilic substitution reaction will takes place even at room temperature, though the first one requires temperature. It will take place at a high temperature of 433 Kelvin. ठीक है, समझ में आया? जैसे जैसे हम NO2 ग्रुप इंक्रीज कर रहे होंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बिटवीन दिस बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड विल इंक्रीज. तो सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी. समझ में आ गया? फिर अभी यहाँ तक. अब नेक्स्ट है यूजेज ऑफ नाइट्रो अल्केन्स. नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ. नाइट्रो अल्केन्स क्या है? दीज आर यूज्ड एज प्रोपेलेंट्स. प्रोपेलेंट्स यानी क्या होते हैं आपको पता है ना, विच आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स एंड रॉकेट्स एंड ऑल. तो प्रोपेलेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स को. एंड नाइट्रो अरीन्स आर इंटरमीडिएट्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ डाइज एंड फार्मास्यूटिकल एंड एक्सप्लोजिव्स. जो TNT होता है, RDX होता है, सुना होगा ना. RDX मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव है ये. TNT भी जो होता है इट्स ऑल्सो एन एक्सप्लोजिव. इट इज़ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलीन, ये भी एक्सप्लोजिव है. लोअर नाइट्रो अल्केन सच एज नाइट्रोमीथेन एंड नाइट्रोइथेन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स. And one more use, chloropicrine is used as an insecticide.
ठीक, समझ में आ गया। फिर यूजेस आपने नोट डाउन कर लिए, मैंने आपको 4 टाइप के यूजेस बता दिए हैं इसके। नेक्स्ट what we have to study about this nitro compounds is the preparation of RDX, how it is prepared. RDX is what? RDX is prepared from hexamethylene tetraamine. याद है कि आपको हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन क्या होता है? हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन मीन्स यूरोट्रोपिन। हमने फॉर्माल्डिहाइड के टाइम पर पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? फॉर्माल्डिहाइड के केस में मैंने आपको बताया था कि हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन कैसे बनता है। तो हम डायरेक्टली अभी मैं ये रिएक्शन आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ, RDX वाली, हाउ टू प्रिपेयर RDX. That is, in this eurotropin means formaldehyde is treated with ammonia so that it gives hexamethylene tetraamine. ये है hexamethylene tetraamine, that is eurotropin, and this इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था मैंने आपको. You have to connect all the nitrogens using CH2 group. ऐसे, ठीक है. देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए और 4 नाइट्रोजन है. और अगर मुझे RDX बनाना है तो इसी का हम क्या करते हैं? नाइट्रेशन कैरी आउट करते हैं. HNO3 के साथ में रिएक्शन कैरी आउट कर दो. नाइट्रेशन अगर हम कैरी आउट करेंगे तो at a high temperature of around 300 Kelvin, so that it gives नाइट्रो कंपाउंड. और ये जो नाइट्रो कंपाउंड है वही RDX है. ठीक, तो अभी इस टाइम पर कैसे होगा? ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाएंगे. ठीक है, तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है. समझ में आ गया इसका कैसे किया मैंने? नाइट्रेशन बस कैरी आउट करना है यूरोट्रोपिन का, सो दैट इट गिव्स व्हाट? RDX. RDX क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव. नाइट्रोग्लिसरीन और डायनामाइट्स जो है वो भी इसी से बनाए जाते हैं. और एक और टाइप का एक्सप्लोजिव होता है, दैट इज HMX, हर मेजेस्टीज एक्सप्लोजिव. वो भी नाइट्रो कंपाउंड से ही बनता है. उसमें भी यूरोट्रोपिन ही होता है, और बट इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज होता है, और कंपाउंड जो होता है उसमें NO2 नाइट्रेशन करने से ही ऑपरेट होता है. ओके, सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज क्लास. हम बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है. हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई टोलिन इज मोर इजीली नाइट्रेटेड देन बेंजीन, एक्सप्लेन. बताना है वाई टोलिन इज मोर easily nitrated than benzene. important question है. as nitration is an electrophilic substitution reaction. कैसी रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. तो ये कहाँ पर होती है? यूजुअली जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है. और टोलिन कैसा ग्रुप होता है? टोलिन में क्या प्रेजेंट होता है पता है ना आपको? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है टोलिन में. और CH3 कैसे टाइप का ग्रुप है? इट्स एन इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर वहाँ पर अटैचमेंट ज़्यादा होगी और वो इजीली नाइट्रेट हो जाएगा. और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर. दैट्स वाई इट इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन. वन मोर पॉइंट, हमने यहाँ पर नाइट्रोजन का यानी नाइट्रो अरीन की जो रिएक्शंस पढ़ी, मैंने आपको 3 ही रिएक्शन बताई, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन. तो फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन ये रिएक्शन नहीं देती है. क्यों नहीं देती है? क्योंकि फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन सिर्फ ऑर्थोपैरा डायरेक्टर कंपाउंड्स ही देते हैं. उसमें बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. और NO2 कैसा ग्रुप है? इट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप. तो डेंसिटी कम हो जाती है. अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसका अटैचमेंट भी कम हो जाएगा. इसीलिए उसका रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी. इसीलिए फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस नाइट्रो बेंजीन्स नहीं देते हैं. समझ में आया ना? बिकॉज इट इज़ अ मेटा डायरेक्टर. अगर वन वर्ड में लिखना हो तो बिकॉज इट इज़ अ मेटा डायरेक्टर ऐसा लिख देंगे. अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं. अगर आज के लिए क्लास के लिए इतना काफ़ी है. बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. और अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अगला नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगे. अभी NO2 ग्रुप जो है, हियर वी एंड्स विद दिस ग्रुप. थैंक यू.